Hello everyone. Yesterday we discussed about physical properties and chemical properties, characteristics of matter. Now we are start from our state of matter. Okay, now yesterday we discussed about the matter, which is matter, what is matter, everything which is present in our surrounding, which occupies some space, which has some mass and volume, that is called matter. Okay, and matter is made up of small particles. Okay, there are three characteristics of matter. First characteristic, the matter is made up of स्मॉल पार्टिकल्स. सेकेंड, मैटर जो है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. नाउ थर्ड, particles of matter have some attraction to each other. Okay, now today we will discuss about the state of matter. How many types of state of matter are present? So basically there are three types of state of matter. State of matter. Observe different type of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. So how many types of state present of matter? So basically there are three types of state present of matter. This is solid, liquid and gas. Okay, so now state of matter, three state of matter. One is solid, second is liquid and third is gas. This state of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter. So first of all, we discuss about the solid state of matter. So how can we say that this is solid, and by which activity we can say that this quality is present if any matter, so this matter is known as the solid. First, collect the following articles: a pen, book, needle and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusion into each other? They compressing them by applying force. Are you able to compress them? So first of all, this activity, first of all we take some matters. First of all we take a pen, पेंसिल, एनीथिंग की मतलब हम उसमें निडल ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं, कुछ भी चीज हम उसको ले रहे हैं. आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, उसको मार्क करें कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन, हमने इसको एक मार्क कर दिया. ठीक है, या फिर दिस इज अ बुक, हमने इसको एक मार्क कर दिया, हमने इसकी एक बाउंड्री बना ली. ओके, तो आप व्हेन वी मेक अ बाउंड्री वी ऑब्जर्व दैट कि दे हैव अ पर्टिकुलर शेप. ओके, पेन दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप. ओके, बुक का एक पर्टिकुलर शेप है, नीडल का एक पर्टिकुलर शेप है. तो दे हैव अ पर्टिकुलर शेप. ईच मैटर हैव अ पर्टिकुलर शेप, कि सभी की अपनी एक पर्टिकुलर शेप है. और अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि व्हेन वी अप्लाई सम प्रेशर व्हाट हैपन कि इफ दे आर ब्रेक डाउन, या फिर हम कुछ और कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल एक रबर बैंड का एक्सपेरिमेंट किया था. तो रबर बैंड दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड, कि उसका क्या था, जब हमने उसको प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, it can change its shape. So now here we discuss about, so all the above are example of solids. All the above. What is this? A pen, a needle, a book, anything, a wooden piece. Okay, everything they have a particular shape. So that means कि they have a particular mass, particular volume. So it means कि these are known as a
सॉलिड। वो कैसे जाने जाएंगे? सॉलिड की जैसे। तो ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। तो व्हाई वी कैन से दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड? हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर शेप। उनके पास क्या है? एक पर्टिकुलर शेप है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. So what is the characteristic of solid? So the characteristic of solid is they have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. उनके पास क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक शेप, पर्टिकुलर शेप है एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। That is have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape. So first of all, they have negligible compressibility की मतलब अगर for example this is a wooden piece, ओके आप वुडन पीस को कंप्रेस करोगे, प्रेस करोगे, क्या इसमें क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी जो पावर है वो क्या है? बिल्कुल नो है, वो नहीं कंप्रेस नहीं होगा। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड की क्या टेंडेंसी है? वो अपने शेप को क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। बिकॉज वी कैन से दैट कि इफ अ मैटर हैव अ पर्टिकुलर शेप तो दैट इज सॉलिड। अगर हम कह रहे हैं कि एक मैटर पर्टिकुलर शेप है तो इसका मतलब वो कैसा है? सॉलिड है। तो सॉलिड की क्या टेंडेंसी होगी? वो अपने शेप को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अगर वो अपने शेप को मेंटेन करेगा तभी तो वो सॉलिड रहेगा, नहीं तो वो सॉलिड नहीं रहेगा। तो इट मीन्स कि जो टेंडेंसी है कि टू मेंटेन देयर शेप, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस solids may break under force but it is difficult to change their shape so they are rigid। कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अपना उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट वो क्या होगा? वापस अपना शेप गेन कर लेगा। कि वो ब्रेक हो जाएगा अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। कि हम अगर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि चौक है, ठीक है, चौक पीस को हम क्या कर रहे हैं? अभी वो अपने पर्टिकुलर उसमें रखा हुआ है, एक शेप में है। अगर जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, बट अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। तो दैट इज द रीजन कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, बट अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। क्लियर? कि जैसे अगर हम कोई भी जैसे आइस है, आइस दिस इज अ स्टेट ऑफ सॉलिड। अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो क्या होगा? ब्रेक होगा, बट अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या उनके अंदर फिक्स्ड शेप है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम प्रेजेंट है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why all the above are solid as? First of all, what about a rubber band? Okay, जो हमने कल भी एक्टिविटी करी थी कि रबर बैंड, कि हम रबर बैंड को क्या कहेंगे? रबर बैंड दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड की लिक्विड गैस गैस। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड। रबर बैंड क्या है? सॉलिड है। अगर हमने रबर बैंड को ऐसे ही रखा है, अभी वो अपनी पोजीशन में है, इट मींस कि इट इज अ पर्टिकुलर शेप, इट हैव अ पर्टिकुलर शेप। ओके, उसके पास क्या है? पर्टिकुलर शेप है। व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड, अब हम रबर बैंड को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, तो नाउ इट विल चेंज इट्स शेप। ये अपना शेप क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इट मींस बट व्हेन वी रिमूव आवर प्रेशर, जब हम अपने फोर्स को प्रेशर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो इट विल रीगेन इट्स पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को वापस क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। दैट मीन्स कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ये किसका एग्जांपल है? सॉलिड का। नाउ सेम शुगर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, उनको हम कंटेनर में रखते हैं, वो उसका शेप ले लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वन पीस ऑफ शुगर, अगर हम एक सिंपल शुगर की बात करें तो उसका क्या होता है? शेप पर्टिकुलर होता है, वो अपना शेप चेंज नहीं करता।
सेम व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर भी कि स्पॉन्ज है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, बट जैसे ही हमने उसको प्रेस किया, प्रेस करने से क्या हुआ, उसमें से एयर रिलीज हो गई, तो वो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। आफ्टर दैट हमने उसमें से प्रेशर रिलीज के प्रेशर हटा दिया, तो वो वापस अपने क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। A rubber band change shape under force and regain the same shape when the force is removed. If excessive force is applied it break. अगर हम उसको बहुत ज्यादा कि एक हमने पर्टिकुलर रबर बैंड को एक पर्टिकुलर टाइम तक स्ट्रेच किया है, एक पर्टिकुलर प्रेशर लगा के स्ट्रेच किया, तब तक तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बट वो अपनी शेप चेंज, अभी जब तक हमने प्रेस किया, अपने अपने उस पे फोर्स अप्लाई किया है, तब वो अपनी शेप चेंज करेगा। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो वापस अपनी शेप गेन कर लेगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। जो पर्टिकुलर, अगर हम एक 1 बाउल ऑफ शुगर की बात करते तो वो तो क्या होगा, हर एक कंटेनर के अंदर अलग अलग शेप गेन करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ अ शुगर, अगर हम एक पर्टिकुलर केवल एक सिंगल पीस ऑफ शुगर की बात करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। When whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar, a sponge has minute holes in which air is trapped. स्पॉन्ज में क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it। कि जो जब हम उसको स्पॉन्ज को दबा रहे हैं तो उसमें से एयर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली प्रेस द स्पॉन्ज। आफ्टर दैट ही हम जैसे ही हमारा प्रेशर हटा रहे हैं, फोर्स हटा रहे हैं, तो वो वापस क्या हो जाएगी, एयर उसके अंदर फिल हो जाएगी और वो वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेगा। तो दैट मीन्स कि ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, सभी किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के। तो क्लियर, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। ओके, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो इट मीन्स कि फिक्स्ड शेप and volume. Okay, so this is the property of solid. And second main important point, they don't have space between them. Okay, solids में क्या होता है, there is no space between the particles। यहाँ पे particles के बीच में space नहीं होता, तो no space between them। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की। नाउ नेक्स्ट द लिक्विड स्टेट। नाउ और सेकेंड इज लिक्विड स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म अ एक्टिविटी, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, now container of different shape, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। Okay, what will happen if these liquid are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Okay, so now there are some questions. Okay, first of all, what we do कि we collect some water, cooking oil, milk, juice। हमने इनको क्या किया है, कलेक्ट किया है। After that we put them into a different containers। Okay, कितना कम करेंगे, 50 ml। हमने एक
मेजरिंग सिलेंडर से हमने क्या किया, 15 ml हमने उसको मेजर कर लिया है। आफ्टर दैट वी पुट देम इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। फिर हमने एक ग्लास ले लिया, एक जार ले लिया, अलग अलग हम उसको कंटेनर में, डिफरेंट कंटेनर में हम उसको क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट व्हेन वी ऑब्जर्व इट, what will be observed? We observe that the volume of the liquid is same. If we take a glass of water, okay, first of all if we take a glass of water, हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आफ्टर दैट वी पुट इट इनटू अ जार। अगर हम इसको किस में कन्वर्ट पुट कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं जार के अंदर, देन वी पोर इट इनटू अ जार। तो द वाटर विल जो वाटर है वो क्या करेगा, विल गेन द शेप ऑफ अ जार, वो जार का शेप ले लेगा। बट द वॉल्यूम, जो हमने 1 गिलास ऑफ वाटर लिया था, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। इट मीन्स कि उसकी शेप तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? क्या जो उसकी शेप है ऑफ लिक्विड की सेम रहेगी? नो। एंड when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या ये easily flow होगा? Yes. Now we observe that liquid have no fixed shape. This is a property of liquid. What is the property of liquid? They have no fixed shape. That's why अभी हमने कहा था कि when we take a glass of water, तो जब हम उसको pour कर रहे हैं in a jar, तो वो किसका शेप ले लेगा, जार का। तो दैट मीन्स कि दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, वो उनके पास क्या है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वो क्या करेंगे, जिस कंटेनर में हम रख रहे हैं उसकी पोजीशन क्या करेंगे, उसकी शेप गेन कर लेंगे। अगर हमारे पास इफ वी हैव अ 50 ml ऑफ वाटर, व्हेन वी पोर इट इन अ ग्लास, तो इट टेक द शेप ऑफ द ग्लास। व्हेन वी पोर इट इनटू अ जार, तो इट विल टेक शेप ऑफ द जार। ये किसका शेप ले लेगा, जार का। और ग्लास में रखा है तो ये ग्लास का शेप ले लेगा। तो लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। कि लिक्विड क्या हो सकते हैं, वो इजीली फ्लूइड कर सकते हैं, उनको हम इजीली वो फ्लो कर सकते हैं। रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4 and 1.5. In the previous lecture we discussed about the activity number 1.4 and 1.5. What is our activity? This is our activity 1.4. When we take a glass and when we put it into a ink and another honey. जब हमने एक हनी और लिक्विड इंक की बात करी थी, तो इन द एक्टिविटी नंबर 1.4 और इन द एक्टिविटी नंबर 1.5 हमने क्या लिया था, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब हमने क्रिस्टल कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट जब हमने लिया था, उस समय हम क्या ले रहे थे, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। और जब हम लिक्विड और हनी ले रहे थे, तो उसमें क्या था, हमारा लिक्विड कैसा था, इंक थी, और वो क्या हुआ, इजीली मिक्स हो गई थी। और हनी कैसा था, सेमी सॉलिड था, वो मिक्स तो हुआ था पर उसने टाइम लिया था। ओके, तो नाउ रेफर द एक्टिविटी 1.4 1.5 वेयर वी सॉ दैट solid and liquid can diffuse into liquid. Solid and liquid, what is the meaning solid and liquid? It means कि liquid, it means the example of ink, कि जब हम ink ले रहे हैं, ink, this is the example of liquid. When we pour ink into a beaker, जब हमने इंक को किसमें डाला, बीकर में, तो वो क्या हो गई, वो डिजोल्व हो गई थी। सेम सॉलिड स्टेटमेंट, जो हमने हनी लिया था, दिस इज अ सेमी सॉलिड। हनी कैसा था, सेमी सॉलिड था। उसके अलावा ये जो हमने एक्टिविटी उसके अंदर 1.5 में क्या लिए थे, कॉपर सल्फेट लिए थे। दिस इज अ कॉपर सल्फेट, कैसे है, सॉलिड पार्टिकल्स है। कॉपर सल्फेट की कैसे पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड है। तो जब हमने उन सॉलिड पार्टिकल्स को और लिक्विड को क्या करा, कि जब हमने इसको मिक्स किया, तो दे कैन इजीली मिक्स इनटू द लिक्विड। तो इट मींस कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, कि सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं।
कि सॉलिड जैसे क्रिस्टल, जो हमने क्रिस्टल सल्फेट का कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स लिए थे, पैलेट्स ली थी कॉपर सल्फेट की, वो कैसी थी, सॉलिड पैलेट्स थी, उसको हमने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, वो इजीली डिसॉल्व हो गई। उसके बाद हमने लिक्विड जैसे इंक ली थी, उसको हमने डिसॉल्व किया था, वो भी इजीली डिसॉल्व हो गई थी। तो इट मींस कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर diffuse and dissolve in water. Gases also dissolve in water, dissolve in liquid. कि these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. कि जो अगर हम बात करें कि some aquatic animals जैसे fish है, ठीक है, this is a aquatic animal, अगर इसको we know that कि ऑक्सीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव, कि सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो बस जो एक्वेटिक एनिमल्स है फिश, वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, दे गेन देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। कहां से ले रहे हैं वो, वाटर के अंदर। वाटर में क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनटू द वाटर। तो इट मींस कि गैसेस from the atmosphere diffuse and dissolve in water, कि जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है इन द वाटर, लिक्विड के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर डिसॉल्व इनटू द वाटर। वो क्या है, लिक्विड जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो कौन यूज में लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो इट मींस कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल आर डिसॉल्व इन वाटर। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. किसकी प्रेजेंस में, dissolved oxygen, जो किसमें प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. Important point कि जो solid है, liquid है और गैस, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑल आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सभी किसमें डिफ्यूज हो सकते हैं, इन द लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, नाउ जो डिफ्यूजन की रेट है, दिस इज अ वेरीज। तो नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, लिक्विड के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। नाउ फर्स्ट, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड नाउ सेकंड, सम स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पेस। तो सम space is present. Okay, now हमने क्या कहा था कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑन लिक्विड इज, कि डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, higher than that of solid. If you talk about, we can say that solid, liquid and gas all are diffused into the liquid. But what is the rate of diffusion? Okay, तो वो किस रेट से, किस हिसाब से, वो किस रेट से डिफ्यूज होते हैं इनटू द लिक्विड। तो जो हायर देन, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड की रेट सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगी, हायर होगी। Liquid higher than that of solid. This is due to that fact in the liquid state. Particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid. जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि solid कि they don't have space between them, but liquid they have some space between them. तो that is the reason कि जो उनकी जो diffusion की जो रेट है, दिस इज द हायर कंपेयर टू सॉलिड। कि अगर हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो लिक्विड की डिफ्यूजन की रेट क्या है, हायर है, और सॉलिड की कम है। नाउ
Our third is the gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. Which gas is present into the cylinder? Helium. Now, take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber prop as shown in the figure 1.4. Okay. Remove the piston from all the syringes. Leave one syringe untouched. Fill water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. Okay, now look at here. This is a piston. ये क्या हमारा piston है? We take 3 type of syringe. Okay, like this. We take 3 syringe like this. After that, in the first syringe हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. उसके अंदर हम कुछ भी fill नहीं करेंगे. After in the second, we fill some liquid. Okay, and in the third, we fill some chalk powder. Okay. After that, हम क्या करेंगे? This is a piston. ये क्या है? पिस्टन. इसको हम अप्लाई करेंगे एंड प्रेस करेंगे. जैसे हम इस पिस्टन को प्रेस करें टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो वी ऑब्जर्व दैट कि जो पिस्टन के अंदर, फॉर एग्जांपल कि हमने यहां तक सॉलिड फिल किया है, ठीक है, तो पिस्टन कहां तक मूव करेगा? जहां तक हमने सॉलिड के पार्टिकल्स फिल किए हैं, और वो थोड़ा सा और प्रेस हो जाएगा. इट इज नॉट इजीली प्रेस. उसको हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते. अगर हम लिक्विड वाले की बात करें तो लिक्विड सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इजीली प्रेस हो जाएगा. और अगर हम गैस की बात करें तो गैस वाला सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में ज्यादा इजीली प्रेस हो जाएगा. तो इट मींस कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस व्हाट इज द पोजीशन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या देखा कि जब हमने when we observe it कि जब हमने सॉलिड वाले पिस्टन को पुश किया था तो वो इजीली पुश नहीं हो रहा था. जब हमने वाटर वाले को पुश किया तो वो कंपेयर सॉलिड की कंपैरिजन में इजीली पुश हुआ था. और जब हमने गैस वाला पुश किया तो वो सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में और इजीली प्रेस हो रहा था. तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू solid and liquid. So is by this experiment we can say that कि gas are easily compressed. They have a compressible characteristic. कि उनके अंदर, उनके पास क्या है? कंप्रेस होने का कैरेक्टरिस्टिक है. बट सॉलिड और लिक्विड में क्या है? कम है. गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में. उसके बाद लिक्विड में, देन सॉलिड में. The liquefied petroleum gas (LPG) cylindrical that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas (CNG) is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो this is the main characteristic of gas. क्या है कि इसकी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी. इसके अंदर क्या है? पावर है. कंप्रेस होने की, ड्यू टू द कंप्रेसिंग पावर, जो कंप्रेसिबिलिटी की जो उसकी पावर है, दैट्स व्हाई जो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस उसको हम इजीली किसमें फिल कर सकते हैं? सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली. We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले हमारी गैस की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. What is the property of gas? They don't have fixed shape and they don't have fixed volume. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, no fixed shape and no fixed volume. And
second. They have large space between them. Large space present between them. Now, how does this smell reaches us? So, the particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into the other gases. कि ये हमने पहले भी प्रीवियसली भी हमने एग्जांपल किया था कि जो हॉट फूड है उसकी स्मेल हमें बहुत जल्दी आती है कंपेयर टू कोल्ड फूड. ठंडे खाने की जगह हॉट जो गर्म खाने उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है. क्यों? क्योंकि द diffusion rate, because this is the example of diffusion rate which is present into the high. किसमें present है high? गैसेस में. गैसेस की जो diffusion rate है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज्यादा हाई है. इसलिए जो हॉट फूड है उसकी जो अरोमा जो उसकी जो पार्टिकल्स है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट गैस के अंदर बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं और उसी के साथ वो क्या हो सकते हैं उसमें हॉट के साथ हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज है टेम्परेचर के साथ और गैस के अंदर गैस में डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है. तो दैट इज द रीजन कि दोनों रीजन की वजह से जो हॉट वाटर फूड जो है उसकी हॉट फूड की स्मेल हमें बहुत जल्दी आ जाती है कंपेयर टू कोल्ड की. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container. Look at here in this diagram. This is an example of solid. All particles are arranged in a proper manner. ठीक है, but they don't have space between them. कि उनके बीच में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, little bit space present है. But when we talk about the liquid, liquid के अंदर सभी particles कैसे हैं? Randomly हैं और सभी इधर कोई किधर मूव कर रहा है कोई किधर मूव कर रहा है, सभी इधर उधर मूव कर रहे हैं. Okay, now when we talk about the gases, तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स है उनमें बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं ऑल पार्टिकल्स ये क्या करेंगे एक बॉल की तरफ क्या कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. दे आर एक्सर्टेड प्रेशर टुवर्ड्स द बॉल. ये बॉल की तरफ क्या कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो गैस force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. जो ये force exert कर रहे हैं per unit area of the wall of the container, उस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं pressure exert कर रहे हैं. Now, so basically we discussed about the state of matter. So there are three state of matter. One is solid, liquid and gas. Okay, and solid they have fixed shape and volume but they don't have space between them. Liquid की बात करें तो they don't have fixed shape and but they have fixed volume and some space present between them. और गैस की बात करें तो they don't have fixed volume and fixed shape but उनके अंदर जो स्पेस है वो बहुत कंपैरिजन टू लिक्विड बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफ्यूजन रेट, व्हाट इज द डिफ्यूजन रेट? सॉलिड के अंदर ज्यादा होगी लिक्विड में? डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किसमें है? गैसेस में. तो सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में. आफ्टर दैट
लिक्विड, आफ्टर दैट सॉलिड। तो सबसे कम डिफ्यूजन रेट किसमें है? सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस। क्लियर? आई होप आपको सबको समझ में आया है। रिमेनिंग टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।